Hello students, I hope you all are fine at your homes. Today we are going to start a new topic, that is networking fundamentals. In this topic we will learn about what is network, how internet is working, how you are able to get communication with a person living far away from us. All those things we are going to discuss in today's topic. Our first topic is computer network. Means what is a computer network? We can see here in a picture, it's a sample of computer network. Then what it means it's a group of computers, but those computers which are interconnected with each other. We can see that these all are connected with each other. Fine. So it's a computer network. Now if we have to give a definition, then what we will say, it's a group of two or more computer system, or instead of computer there can be a printer, there can be a scanner, any other device also. Okay, it's a group of interconnected computer system. Got it? अब क्यों बनाते हैं हम नेटवर्क? Why it is required? For sharing of communication. Suppose example लेते हैं, this computer system has lot of information and same information is required by all of these. Then with the help of this network, the same information can be transmitted to all the system. वो बार बार पेन ड्राइव में लेके एक को देना, दूसरे को देना, all that is not required. Got it? That is sharing. And if suppose here one printer we have attached instead of this computer system, then from that single printer, print out from all of other computer system can be taken. आप देखो 10-12 जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और for all of them only single computer can work, single printer can work. Okay, and if networking was not there तो क्या होता? तो for 8 or 9 computers 8 या 9 printer लगते. Obviously it means network saves the money, saves the resources, it shares the communication. बहुत सारे फायदे हैं. Okay, we'll talk later on in the same discussion. Now the types of networks. Here are 4 types of networks: PAN, LAN, MAN, WAN. We will discuss them one by one. Let's discuss PAN, that is personal area network. It is the smallest network. जो आपके घर में सपोज 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल का नेट ख़त्म है, तो हम क्या करते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट कर दूसरे मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं. दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैन. और थ्रू ब्लूटूथ in the speakers we play music, that is one of the example of PAN. It's a type of network in the smallest area and the limit of this is within 10 meters. आप कभी भी देखना ब्लूटूथ ऑन करके 10 मीटर से दूर जाना, that network will not work. Okay, तो best example is Bluetooth or your hotspot can be there, mobile hotspot. Got it? So this is PAN. It's the smallest network and its limit is 10 meter. Next is LAN. It's larger than the PAN. LAN is local area network. It's the network within the range of 10 kilometers. For example, एक college campus है, या either a school campus is there. For example, let's take our school. It's within the 4 to 5 kilometers and same network is working for 4 different buildings, and we have taken only one internet point, and that is through LAN, that is spreaded in the whole school. Fine. So that's the best example of LAN. And number of systems we can connect, 2, 3, 10, 20, 100, 200, as many systems can be connected there, and it is useful for sharing purpose. Discuss किया अभी हमने how the sharing is done. And in LAN anything we can connect, any printer, any speaker, any peripheral device. Got it? So LAN is larger than PAN and its limit is up to 10 kilometers. Next is मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नाम से क्लियर हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन मीन्स बिग सिटीज, मीन्स ऑलमोस्ट दिस नेटवर्क
covers a complete city. Got it? Means up to 50 kilometer area can be covered through the man. For example, an organization who is having its offices in at 4 different places within a city. So for connecting them, the man network is required. Got it? For example, if we want to create a network of whole Panipat city, for that man is required. Means because the limit is is up to 50 kilometers. More than 10 kilometers, then we have to go for man. It's the larger network than the LAN. Clear? Next is wide area network. नाम से clear है, wide area means a very vast area it is covering, or another name you can say it is internet. Here you can see in the diagram, London, India, America, all are connected through the WAN. It's the largest network. Okay, it covers almost the whole world. Expensive. How expensive? जो हम नेट के चार्ज के पैसे देते हैं, only that's the expense. Okay, but PAN में वो भी नहीं लगा, LAN में भी नहीं लगा. Only for the internet point we have to pay, otherwise no expenses there. WAN is used for MNCs, multinational companies, and for WAN a router or network devices are required. Like हम घरों में अपने इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, तो a router is placed at our homes. Fine. So that is a device which brings up that link to us for using the internet. Got it? अब हमने 4 नेटवर्क पढ़े. सबसे छोटा PAN, after that LAN, after that MAN, and the largest one is WAN. Got it? No area limit is here. Next is what are the advantages of computer network. अभी कुछ advantage हमने पढ़ी. Rest of we will discuss here. Sharing of hardware means within a network we can share the hardware also. मैंने printer का example दिया. Suppose we have a network of 10 computers and within a network we have connected one printer also. For those 10 computers we can work through one printer only. 10 computers का print out एक printer से काम चल सकता है due to the sharing of hardware. Got it? Then sharing of software. If one of the software is installed in one system and in rest of 9 systems that software is not there, then we can share that software also. No need for buying that software again and again. No need for redistributing that software. Means एक बार purchase किया original software and share that to all the connected computers, that will be used. पैसे बचे, money saving is there, resource saving is there. Then sharing files. Suppose one file is in one of the system in a network, and for that file is required by other systems also, so we can share that file in a network and rest all the computer can access that file. So file sharing can be done. Next is backup. Data can be stored on a central computer on server with a backup system. Means एक सिस्टम हम मेन बना लेते हैं नेटवर्क में, for rest other systems everything is saved on that system which have the backup facility. So security of your data is also there. Next is cost effective. In the cost effective, can you detail how it's cost effective? हमने यहाँ बात की कि that we can work with one printer instead of 10 printers. तो 9 printer का पैसा बच रहा है. It's cost effective. सॉफ्टवेयर खरीदने नहीं पड़ रहे हैं. We don't need to purchase more hardware. तो it means it's cost effective. Got it? We are saving our hardware, we are saving our software, and for those hardware जगह भी चाहिए रखने की. Furniture is also required. So in many ways the cost is saved. Then minor effect of breakdowns. A breakdown in the individual computer on the network will not affect the operation of entire network. Suppose from 10 computers, हम network की बात कर रहे हैं ना, we have 10 computers in network. हम assume करके चल रहे हैं that we have a network of 10 computers. Suppose one computer goes out of working, एक system खराब हो गया, okay? Then rest of the 9 will not stop working. उनका काम नहीं रुकेगा. It will not affect that network. Got it? Then saves paper and time.
Here, next is saves paper and time. Network also reduce the need of generating multiple hard copies. If I want to show something to someone, we can share that file on any of the backend system. उस सिस्टम पे कोई जो देखना चाहता है देख सकता है. करेक्शंस कैन बी डन. तो पेपर सेविंग हो रही है, टाइम सेविंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो रही है, मनी सेविंग इज ऑल्सो देयर. तो इन एवरी वे द कंप्यूटर नेटवर्क इज बेनिफिशियल फॉर अस. नाउ there are some disadvantages also for the network. First is initial cost. For starting up a network, केबल चाहिए हमें, राउटर चाहिए, स्विच चाहिए, हब्स चाहिए, so many network devices are required. Means initial cost. Starting में एक network setup के लिए we need to invest. We have to spend the money starting में. Got it? नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन. इफ़ द नेटवर्क ग्रोज टू लार्ज, अगर बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाए, 50, 60, 70 सिस्टम अगर एक नेटवर्क में हो जाएं, देन एन एफिशिएंट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ दैट. कभी किसी सिस्टम का सम मिसहैपनिंग कैन हैपन, कहीं वायर कट हो जाए और द नेटवर्क सिग्नल्स आर नॉट अवेलेबल, ऑल दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड बाय अ स्किल्ड पर्सन. देन मेजर इफेक्ट्स ऑफ ब्रेक डाउन. सपोज इफ़ द कंप्यूटर नेटवर्क्स मेन सर्वर, जो हमने मेन सिस्टम बनाया है जिसमें बैकअप लेते हैं या जिसमें मेन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स हैं, इफ़ दैट सिस्टम गोज आउट ऑफ वर्किंग, देन द होल सिस्टम, द होल नेटवर्क कैन go for breakdown. Then viruses. And now one thing we are discussing continuously, that sharing is there. Suppose if one of the system of the network got virus attack, then obviously that virus will be transferred to other systems also. But if we have antivirus, तो ये डर तो नहीं है हमारे पास, तो we should go for antivirus program. Then security. There is a danger of hacking, especially जब बड़ा network हो जाता है ना, then this fear is always there. The security of a network therefore will have to be monitored. हमें firewall on रखनी चाहिए, antivirus installed रखनी चाहिए, all that should be taken care in computer network. Now architecture means बनावट कैसी होती है network की, shape कैसी है. The network architecture is an overall design of computer hardware. ओके कैसे फंक्शन करेंगे, कैसे केबलिंग होगी, कहाँ सिस्टम रखे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर. देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर. वन इज पीयर टू पीयर एंड अनदर इज क्लाइंट सर्वर. पीयर टू पीयर, हेयर इन पीयर टू पीयर मीन्स इंडिविजुअल, वन टू वन, जिसको हम सीधा कहते हैं वन टू वन, दैट इज पीयर टू पीयर. हेयर ईच कंप्यूटर इज इक्वल टू अदर कंप्यूटर, कोई बॉस नहीं है. सपोज यहाँ डायग्राम देखें, 4 computers are connected with this device. ये device हम आगे पढ़ेंगे. With this device, these 4 devices are connected. These 4 are of same importance. कोई यहाँ boss नहीं है. Boss means कोई भी server नहीं है. All have equal importance in this network. Got it? Here, in terms of resources, they can access and share. Each and every computer can access each and every information. एंड दे कैन शेयर. चारों एक दूसरे की चीज़ें ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं. गॉट इट? दीज आर दिस टाइप ऑफ नेटवर्क एक्ट बोथ एज सप्लायर एज वेल एज कंज्यूमर. ये दे भी रहे हैं इंफॉर्मेशन और ले भी रहे हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क. ओके, गॉट इट? हेयर in all these 4 systems, their files, their software, their hardware, their memory device, their printer, everything is in sharing. Got it? All have equal importance. One to one connection is there. Next is client server network. Here what happens in client server network, a network is there, and suppose in a network 10 computers are connected. In those 10, only one system will be of main importance, that is called server. Got it? This is client server. जितने rest of the connected system, they all are clients, and the one main specialized system is server. This server is having all the information saved on this. Okay, सारी information server के पास है. It is connected with all the clients. These clients can request, ये request करेंगे कोई भी information इससे लेने की,
एंड दिस सर्वर विल सर्व देम, उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। जो भी क्वेश्चन ये पूछते हैं इट विल आंसर देम। लाइक हम गूगल पे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर क्लाइंट एंड गूगल इज सर्वर। वी आर रिक्वेस्टिंग गूगल टू आंसर आवर क्वेरीज, फाइन, एंड गूगल इज सर्विंग अस। गॉट इट? आई थिंक नाउ इट्स मच क्लियर। तो सर्वर serves the client's request, the other systems are clients and only one main computer is server. Client can ask the question and server will answer that question, means it will request and it will serve. Got it? Now difference between these two, peer to peer and client server. क्या difference है इन दोनों के बीच में? अभी हमने वैसे बहुत डिटेल में पढ़ा है, but one by one let's do it. All compute in peer to peer, all the system have equal importance, सब में equal talent, सब में equal files, everything is at equal importance. In client server, one system is more powerful than others, that one system is called server. Got it? In peer to peer type of network, each computer can request and each computer can serve the request. ठीक है, क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं। Got it? Here only one system is server that can serve and rest all are client, they can serve they can request for question answer. Okay, here in peer to peer each computer can store its own data, हर computer के पास अपना data है, they can store, but in client server only on the server the files and data is stored, सिर्फ एक computer के पास stored होगा. In peer to peer every computer is also required to provide these resources for use by others. हर computer के पास resource हैं जो दूसरा system भी use कर सकता है. Here only server have the resources which can be used by other systems also. Okay, here every system is having equal importance, सब अपना काम कर रहे हैं. Okay, and it will not affect the working of your network. जब बहुत सारे यूज़र भी काम कर रहे हैं तो इट्स वर्किंग फाइन. ओके, बट हेयर सारे क्वेश्चन एक ही सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, सर्वर, तो सर्वर के ऊपर ज़्यादा बर्डन है. ओके, तो इट मीन्स इफ मैनी रिक्वेस्ट आर सेंड टू सर्वर तो ऑब्वियसली सर्वर का काम स्लो हो जाएगा. ओके, वर्किंग ऑफ सर्वर विल बी स्लोअर डाउन. In P2P network, it is less expensive and easier to implement. Okay, because hardware, software कुछ special type का नहीं होता, तो that's why it's normal average जो हमारे घर में systems हैं उन्हीं से आराम से P2P network बन जाता है. In client server, the configuration of server system is very much high and expensive too. It's as compared to P2P, it is more expensive. Okay, and not that easy to implement like this. In peer to peer security is major concern. Got it? क्योंकि चारों ले सकते हैं, चारों दे सकते हैं, चारों ही बॉस हैं आपस में. सपोज 4 सिस्टम है peer to peer में, तो all are boss. Here security is easy to maintain because only we have to put security on only the server. Okay, specific computers can be allowed to specific areas. Here specific security measures can be set for the server कि भाई इस सिस्टम से बात करनी है, इससे नहीं करनी है. Okay, wherever we feel any security attack issue, there the sharing can be prohibited. Got it? Last is in peer to peer it is usually implemented for smaller number of computers. छोटे से एरिया में कम ही सिस्टम है, फॉर देम वी यूजुअली ट्राई दिस. इन क्लाइंट सर्वर इट इज़ यूज्ड एट लार्जर प्लेस. फॉर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल इज ईमेल. ईमेल इज ऑल्सो योर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, है ना. वर्ल्ड वाइड इट्स वर्किंग. आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्विचिंग टेक्निक्स. स्विचिंग मीन्स सपोज वी आर कम्युनिकेटिंग विद समवन. वी आर सेंडर, हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, एंड द पर्सन टू हुम वी आर सेंडिंग दैट इज रिसीवर. तो इन बिटवीन द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट, अब एक नया वर्ड मैंने यूज़ किया, ट्रैफिक मीन जैसे रोड्स पे हमारे यहाँ ट्रैफिक है, इन द सेम वे इंटरनेट पे भी दुनिया मैसेज भेज रही है, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर सेंडिंग मैसेज. तो देयर मस्ट बी अ ट्रैफिक, दैट ट्रैफिक इज कैन बी नेम्ड एज डिजिटल ट्रैफिक.
तो कैसे हमारा मैसेज हम सेंडर से रिसीवर तक जाता है, दैट इज स्विचिंग टेक्निक्स. देयर आर 3 switching techniques. We'll discuss one by one. The first technique is circuit switching. In the circuit switching, the sender and receiver are connected through a unbroken path. Okay, suppose A को D पे मैसेज भेजना है तो ऑब्वियसली एक सीधा सा रास्ता है, मीन्स और कोई ऑप्शन नहीं है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम लैंडलाइन फ़ोन डायल कर देते हैं, जब तक कनेक्ट नहीं होता टिल देन we have disturbances, but after connecting a dedicated line is there. Dedicated line means एक रास्ता जो सिर्फ उसके लिए बना हुआ है, sender to receiver. That means dedicated path, कि सिर्फ only for your conversation a line is there. Got it? तो that a dedicated path exists between the two ends. वो two end कौन है? Sender and receiver. Advantage of circuit switching is the communication channel once established, that is dedicated. एक बार कनेक्शन सेट हो गया तो that is yours. आराम से आपकी कोई ट्रैफिक, कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगी. Then disadvantage for this is possible long ways to establish the connection. एक सिर्फ हमारे अपने लिए हमें एक ट्रैफिक रोड मिल जाए, for that we have to wait to get the connection established. हो सकता है आपकी कॉल लगने में टाइम लगे, 10 मिनट भी लग जाए कॉल लगने में कई बार. तो दैट इज़ जब तक आपको एक खाली रोड नहीं मिलता आपकी कॉल नहीं लगती है. द मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग ऑल अदर स्विचिंग, ये सबसे महंगी स्विचिंग टेक्निक है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टू, बिकॉज हेयर डेडिकेटेड लाइन इज रिक्वायर्ड. डेडिकेटेड मीन्स प्राइवेटली हमारे लिए एक स्पेशल ट्रैफिक रोड हो जाता है. That's why it's obviously it must be expensive. Next is message switching. Message switching, suppose WhatsApp पे एक मैसेज भेजा मैंने, how that message is received by another person, या SMS भेजा, how that message is received by another, how that goes on digital traffic, that is message switching. In message switching, message is sent from sender to receiver through a series of nodes. Nodes means हमने अभी नेटवर्क पढ़ा, नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, जितने पॉइंट कनेक्टेड हैं, ऑल दोज कंप्यूटर्स और पॉइंट्स दे ऑल आर कॉल्ड नोड्स. 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो इट मीन्स 10 नोड्स आर देयर. नोड वर्ड क्लियर हो गया. एक नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस एक नोड है उस नेटवर्क की. क्लियर? तो हेयर ईच नोड रिसीव्स द मैसेज, स्टोर्स ऑन द डिस्क एंड देन ट्रांसमिट टू अनदर. ध्यान से समझेंगे. सब ये डायग्राम देखो. सपोज दिस सिस्टम इज सेंडिंग अ मैसेज टू दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास जो भी नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक में सबसे पहले अवेलेबल नोड होगा, इट विल सेंड दैट मैसेज टू दैट सिस्टम. ये उस मैसेज को अपने पास सेव करेगा. उसके बाद इसे ये फ्री मिले या फिर ये फ्री मिले, जो भी इसे पहले फ्री मिलता है इन तीनों में से, ये उसको मैसेज दे देता है. फिर वो अपने पास सेव कर लेता है. सपोज ये खाली मिला तो इट विल सेव दैट मैसेज. देन आफ्टर दैट व्हेनेवर दिस सिस्टम विल गेट फ्री, इट विल ट्रांसफर दैट मैसेज टू दिस एंड फाइनली दिस विल ट्रांसफर दैट मैसेज टू दिस. मीन्स यहाँ मेन चीज़ क्या हो रही है, व्हेनेवर एनी नोड इज गॉट फ्री और अवेलेबल, उसको मैसेज दिया जाता है एंड दैट नोड सेव्स दैट मैसेज एंड आफ्टर दैट इट ट्रांसफर फर्दर जब तक आपकी डेस्टिनेशन पर आपका मैसेज नहीं पहुंचता. द मैसेज कीप्स ऑन स्विचिंग, एक डिवाइस से दूसरी पे, दूसरी नोड से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे. दिस इज मैसेज स्विचिंग. गॉट इट? नाउ एडवांटेज इज हेयर एफिशिएंसी इज वेरी हाई. आपका मैसेज कहीं रुक नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मीन्स इट्स कीप्स ऑन स्विचिंग. ओके, बिकॉज मोर डिवाइसेज आर देयर फॉर शेयरिंग. ट्रैफिक, कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होता यहाँ पर, बिकॉज ट्रैफिक कंजेशन हम जाम होने नहीं दे रहे. जो फ्री हो रहा है, जो रास्ता खाली है, उस रास्ते पर आप मैसेज भेज रहे हैं. नाउ द डिसएडवांटेज इज व्हाट, एक मैसेज यहाँ से सिर्फ यहाँ जाना था, उस मैसेज को रास्ते में 4 डिवाइसेस के पास यहाँ भी सेव है, यहाँ भी सेव है, यहाँ भी सेव है, यहाँ भी सेव है. इट मीन्स व्हाट हैपन्स, द लार्ज स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मैसेज switching. I think it's clear. Next is packet switching, the most important topic. Packet switching. Okay, in packet switching the message is broken into series of packets.
सपोज मैं एक मेल भेजती हूँ यहाँ से अमेरिका, वन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर इन अमेरिका एंड आई एम सेंडिंग एन मेल. In mail, a file is attached. Under this technique, that file is broken in smaller parts, and those parts are labeled with a particular address, particular information. उस पैकेट की सारी इंफॉर्मेशन हर पैकेट पे होगी, and those packets are sent. पैकेट आगे भेज दिए जाते हैं. Each packet goes, जो भी रास्ता उन्हें ईजी लगता है उस पर, कोई इस रास्ते से जाएगा आपका पैकेट, कोई इस रास्ते से जाएगा. ये डिजिटल ट्रैफिक एक एग्जांपल दे रही है. डिजिटल ट्रैफिक इज देयर फ्रॉम दिस सिस्टम. पैकेट स्विचिंग टेक्निक इज एक मैसेज के छोटे छोटे पैकेट बना के भेजे. पैकेट 1 ये रास्ता ले रहा है, पैकेट 2 ये रास्ता ले रहा है, बट उन पैकेट्स पे सब सारी इन्फॉर्मेशन है, भाई कहाँ जाना है, किसने भेजा है, क्या है इसके अंदर, एवरीथिंग इज देयर. तो डेस्टिनेशन विल बी सेम, लास्ट में सब एक ही जगह पहुंचेंगे. गॉट इट. द पैकेट स्विचिंग इज फाउंड टू बी मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज नेट. जब बड़े बड़े नेटवर्क हो जाते हैं, देन पैकेट स्विचिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ योर फाइल्स और मैसेजेस यूजिंग इंटरनेट. फाइन. यहाँ से पैकेट्स ब्रोक हुए, लास्ट में जाके ये पैकेट वापस से रिकम्बाइन होके एक ही पैकेट बन जाता है. दिस टेक्निक इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग. दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज डिवाइसेस डोंट रिक्वायर्ड एनी लार्ज अमाउंट ऑफ स्विचिंग सर्किट. हमें पीछे की तरह अलग अलग सर्किट्स नहीं चाहिए, अलग अलग स्विचिंग करने के लिए डिवाइसेस नहीं चाहिए. ऑफर्स इम्प्रूव डिले करेक्टरिस्टिक एज देर आर नो लॉन्ग मैसेज इन द क्यू. कोई ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा, जो ट्रैफिक खाली है, छोटे छोटे पैकेट बना, जिसको जो रास्ता मिलता है उस रास्ते से आपका पैकेट जाता है. मैनी यूजर कैन शेयर सेम चैनल एट सेम टाइम. एक ही ट्रैफिक बहुत सारे यूजर्स के पैकेट उस रास्ते पे हो सकते हैं. ओके, तो एट सेम टाइम मैनी यूजर्स कैन वर्क. Now what is the disadvantage? The protocol for packet switching are complex and hence have additional cost in implementation. Sometimes what happens, suppose एक मैसेज के 6 पैकेट हैं, 5 पैकेट तो पहुंच गए भाई, जब तक छठा नहीं पहुंचेगा वो कहीं ट्रैफिक में फंस गया. Got it? Until and unless all the packets are collected, जब तक मैसेज तो डिलीवर नहीं हो सकता ना, जब तक 6 के 6 पैकेट एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे and they will recombine, only then the message will be delivered. So it means it have to be more specific and complexity is there. Means ये packet switching जो technique है, it's more complex. If the packet is lost, then again the sender has to transmit the data. हो सकता है 6 पैकेट कहीं फंस जाए या डिले हो जाए या गुम ही हो जाए, it may happen. तो then again we have to send the whole data. Got it? तो this is पैकेट स्विचिंग. नाउ नेटवर्क कंपोनेंट्स. हम जब से नेटवर्क की बात कर रहे हैं, फॉर सेटिंग अप अ नेटवर्क वी नीड फ्यू डिवाइसेस विच विल क्रिएट अ नेटवर्क फॉर अस. ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 कंप्यूटर लिए और तारों से जोड़ दियो तो दैट इज अ नेटवर्क. नो, फ्यू डिवाइसेस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. लेट्स सी. फर्स्ट डिवाइस विच वी विल नीड, दैट इज स्विच. दिस इज द डायग्राम ऑफ स्विच. इट्स अ नेटवर्क डिवाइस which connects different computers on a computer network. It receives data and then sends data to all other intended node. अब node word मैं बता चुकी हूँ क्या है. A single point of your computer, of your network. एक network पे जो जितने भी system connected हैं या devices connected हैं, they are node. And now you can see जितने यहाँ port हैं, you can see here I think it's 36 पोर्ट स्विच है. जितने यहाँ पोर्ट्स हैं उतने सिस्टम आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं. कनेक्ट करते ही दे ऑल आर अंडर अ सिंगल नेटवर्क. और स्विच की एक खास बात है. व्हाट स्विच डज, इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन ओनली टू द रिक्वायर्ड नोड. ध्यान से सुनेंगे. सपोज एक नेटवर्क यहाँ पर मैंने 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर 10. ओके, एंड फॉर दोज 10 from those 10 computers, one computer wants a file saved in another computer. Then what this switch will do? This switch will take that file from system number 1 and send that files to system number 2, not to all. सबसे main चीज, switch is very intelligent. Okay, it provide the information only to the intended node. अब intended का मतलब क्या होता है,
जिसे चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अब नाउ आई एम स्पीकिंग, एंड फॉर whom आई एम स्पीकिंग, फॉर ऑल यू, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, फॉर देम. आई एम नॉट स्विच. स्विच क्या करेगा? अगर मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आंसर सिर्फ उस बच्चे को दूंगी. दैट मीन्स आई एम स्विच. बट राइट नाउ आई एम डूइंग इट फॉर यू ऑल. आई एम आंसरिंग यू ऑल. दैट्स वाई आई एम नॉट अ स्विच. स्विच जिसने क्वेश्चन जिसने मांगा है सिर्फ उसी को फाइल देगा. देन रिपीटर. दिस इज अ रिपीटर. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रनिंग, और मैं आपको कहती हूँ यू हैव टू रन फॉर 2 किलोमीटर्स. तो आप शुरू में क्या करेंगे? भागना शुरू करेंगे. थोड़ी दूर भागने के बाद यू विल बी टायर्ड. आप थक जाएंगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी. ओके फिर मैं आपको 2 मिनट रोक के आपको एक ग्लूकॉन डी देती हूँ, एक गिलास में मिला के. ओके क्या होगा? थोड़ी एनर्जी आएगी. देन यू अगेन स्टार्ट टू रन. इट मीन्स आपकी एनर्जी बढ़ गई. इन द सेम वे अगर मैं रास्ते में आपको 2-3 बार ऐसे ही ग्लूकॉन डी दे दूँ तो ऑब्वियसली यू विल कवर द होल पाथ. पहुँच जाओगे. दिस इज रिपीटर. एग्जैक्टली व्हाट इट डज. सपोज वेन एवर इन अ नेटवर्क एट लॉन्ग डिस्टेंसेज द सिग्नल्स हैव टू ट्रेवल and due to the long distance, in between that distance the signal become weak. वीक पड़ जाते हैं आपके सिग्नल. डाटा डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाता है. फॉर दैट इन बिटवीन योर डिस्टेंट प्लेसेस these repeaters are placed. These repeaters regenerate और you can say it re-strengthen your signals. उनके लिए ग्लूकॉन डी का काम करता है ये. ओके it regenerates और it re-strengthen your signals. ठीक है, उनका ग्लूकोज है ये. क्लियर? दिस इज रिपीटर. नेक्स्ट इज हब. व्हाट हब डज? अभी मैंने स्विच बताया. स्विच क्या करता है? जिस सिस्टम ने रिक्वेस्ट मांगी है उसी सिस्टम को रिक्वेस्ट का आंसर देगा. बट हब इज, you can say I am your hub. Right now I am answering to you all people. Means चाहे एक सिस्टम मांग रहा हो कोई भी रिक्वेस्ट, इट विल सबमिट दैट टू ऑल. इस डायग्राम में देखो, एक सिस्टम ने मांगा एंड इट इज सेंट टू ऑल. चाहे किसी को चाहिए या नहीं चाहिए. इट ब्रॉडकास्ट. व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है ना, जो मैसेज हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देते हैं दैट इज सेंट टू ऑल द participants of that broadcast list. तो hub is a networking device that broadcasts the messages to all the connected node. This is hub. इसीलिए इसे dumb switch कहते हैं. dumb मीनिंग समझ रहे हैं ना, बेवकूफ स्विच. और स्विच को हम कहते हैं इंटेलिजेंट हब. मीनिंग समझ रहे हैं दोनों का. चलिए नेक्स्ट इज राउटर. नाम से ही क्लियर है, राउटर जो रूट दिखाता है, रास्ता. means that identifies the way of our network. It's a device which routes the information around the network. जो भी हमारे नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, it routes that. उसके लिए एक पाथ सेट करता है from one network to another. सपोज एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के सिस्टम में हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राउटर फ्रॉम कनेक्टिंग one network to another network. Okay, then next is bridge. bridge क्या होता है? मीनिंग पता है ना हम लोगों को. इट्स अ कनेक्टिंग पाथ बिटवीन द टू प्लेसेस. सपोज बीच में नदी है तो एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए बीच में ब्रिज होगा. तो इट्स वर्किंग इन द सेम सेंस. इट्स अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स एंड पासिस पैकेट बिटवीन टू नेटवर्क सेगमेंट्स. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कोई इंफॉर्मेशन, कोई फाइल भेजनी है तो ब्रिज इज अ पाथ टू गो फ्रॉम. ओके, इट यूज सेम प्रोटोकॉल. कुछ रूल होते हैं हर चीज़ के. तो दीज मीन्स वो जो दोनों नेटवर्क जिनके बीच में ब्रिज बना हुआ है, दे मस्ट फॉलो द सेम प्रोटोकॉल्स. गॉट इट? अ ब्रिज blocks off one segment of network from another. It thus acts as a filter. The bridge checks the arriving information and transmit it only if required. Means bridge properly check करता है एक network से जो information आई. If that needs to be transmitted, only then it transmit that to the
next network. Okay, now network topology. अब topology क्या होती है? Topology is the physical arrangement, means geographical, physical, logical arrangement of computer networking devices. It's the way in which the various nodes मैंने कहा था computers, they are linked together. मीन्स सीधी लाइन में कंप्यूटर रखें कि सर्कल बनाना पड़ेगा या स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, कंप्यूटर्स कैसे रख के जोड़ें, दैट इज अरेंज फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोड्स. तो दिस फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इज कॉल्ड topology. There are many types of topology. We'll discuss one by one. First one is bus topology. बस कैसी होती है? सीधी होती है बेटे. तो here is a diagram of bus topology. In bus topology, a single wire is spread straight line. Straight line में एक wire spread की. This is called backbone. Okay? ये straight जो है starting से end तक. This is called backbone. From this backbone we have connected many system. दिख रहा है? कुछ इधर कनेक्ट कर दे, जितने मर्जी we can connect here. ओके, सब के सब इस बैकबोन से कनेक्टेड है. एंड इन द स्टार्टिंग और इन द एंडिंग टर्मिनेटर्स आर यूज. टर्मिनेट मीन्स इस वायर में सिग्नल चलेंगे, डाटा चलेगा एंड पे, और स्टार्टिंग में आते ही द सिग्नल विल टर्मिनेट. ओके, ओनली वन सिस्टम कैन कन्वे अ मैसेज, कैन ट्रांसमिट अ मैसेज एट वन टाइम, क्योंकि एक ही वायर है, एक बार में एक ही सिस्टम का डाटा इधर से उधर होगा. ओके, एंड it is basically used for small networks. केबल कम चाहिए, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव नहीं है, दिख रहा है, सिंगल वायर चाहिए, बैकबोन. कोई एक सिस्टम खराब हो गया, कोई बात नहीं, रेस्ट विल वर्क परफेक्टली. गॉट इट. लेकिन इफ द बैकबोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बैकबोन खराब हो गई, देन होल सिस्टम विल गॉट डिस्टर्ब्ड. क्लियर है? एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर टोपोलॉजी. लीनियर का मतलब हमने पढ़ा हुआ है ना, सीधा. ड्यू टू दिस बस, इस वायर को बस कहते हैं, है ना, बैकबोन कहते हैं. एंड ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी, दिस टोपोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर टोपोलॉजी. नाउ नेक्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी. स्टार दिख रहा है, बीच में हब है. हब हमें पता है क्या, हमने अभी पढ़ा है. इट्स अ नेटवर्क डिवाइस दैट ट्रांसमिट मैसेज टू ऑल द connected nodes. ये भी node, ये भी node, all are nodes. In star topology, all the nodes are connected to central hub. Okay, center में एक hub होता है और सारे के सारे उससे connected है, सारी nodes आपकी. Every computer can communicate across the network through a central computer. Okay, central hub के through all can connected. We can add any system in it and we can रिमूव एनी सिस्टम. यहाँ इस वाली टोपोलॉजी में एडिंग और रिमूविंग बोथ आर इजी. इफ एनी वन सिस्टम फेल्स हियर, मैं साथ साथ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं. ओके, एडवांटेज क्या है? एनी एडिशन इज इजी, रिमूवल इज इजी, एंड इफ एनी सिस्टम गॉट आउट ऑफ ऑर्डर देन दैट्स नॉट अफेक्टिंग ऑल अदर. बाकी सब ऐसे ही काम करते रहेंगे. ओके, next topology is ring topology. Ring is, we all know that it's of circular shape. So here also a ring shape, a circular path is there. It means every single node of ring topology is connected to two other node. आप देख सकते हैं हर एक कंप्यूटर अपने राइट लेफ्ट दो सिस्टम से कनेक्टेड है. दिस इज रिंग टोपोलॉजी. ओके, ईच नोड इज एग्जैक्टली कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स. सपोज इस सिस्टम को मैसेज भेजना है, तो व्हाट इट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल सेंड अ मैसेज टू दिस सिस्टम, देन दिस सिस्टम विल सेंड द मैसेज टू दिस वन. ओके, हेयर one node sends a message to another node which is not adjacent, then it will again travel from the adjacent nodes. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सामने वाले को भेज दे, नो, इट्स नॉट पॉसिबल. The main disadvantage of this topology is that if workstation goes down, the entire network got affected. Suppose this system got affected, it's not working, तो क्या होगा?
the whole system will got upset. अब सपोज ये काम नहीं कर रहा तो टू whom it will talk, बीच में ये मैसेज पहुंचे, क्योंकि इसके यहाँ तक सारे मैसेज जाने के लिए इट इज रिक्वायर्ड. ओके, so that's why if any system, any node got out of order, then whole system will goes off. And since data being transferred over the network has to pass through each workstation, so that makes it slower than the star. Star में क्या था, हर सिस्टम हब के थ्रू बात कर रहा था, बट हेयर every system is dependent on the adjacent system. सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ट्रैफिक ज़्यादा है, इट मीन्स इट इज़ एज कंपेयर इट इज़ स्लोअर देन स्टार टोपोलॉजी. नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी. मैश, वी ऑल नो मैश मीन्स खिचड़ी. ओके, मैश टोपोलॉजी, इन द मैश टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड विद ऑल अदर नोड्स. हर एक नोड का कनेक्शन बाकी नोड से होता है. सपोज वी हैव 10 कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, then each single computer is connected with rest of the 9 nodes. Okay, in this topology every node not only sends its own signal but also relays data from other nodes. हर सिस्टम बाकी दूसरे सिस्टम से अपने आप बात करता है. each one is responsible for itself only. खुद ही लेना, खुद ही देना, everything directly. Okay, it means यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा, है ना. ऑब्वियसली जब हर एक सिस्टम एक दूसरे से इंडिविजुअली आपस में ही बातें कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग हो रही है, तो ट्रैफिक इज मोर हेयर, लास्ट ट्रैफिक इज देयर. इट्स कॉमनली यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क. जनरली वायरलेस नेटवर्क्स में दिस टोपोलॉजी वर्क्स. गॉट. इफ एनी वन कंप्यूटर फेल्स, देन ऑब्वियसली अगर ये सिस्टम फेल है, मतलब नॉट वर्किंग, देन इट्स ओके, अदर सिस्टम्स आर वर्किंग फाइन. सिर्फ ये बाकी से बात नहीं कर पाएगा ना. Rest network will work as usual. The overall cost of this network is extremely high as compared to others, because obviously networking, proper wiring, wire use ज़्यादा है यहाँ पर, switches लगेंगे, wire लगेंगी, ports लगेंगे. Okay. Next is tree topology. In tree topology, it is one of the most common network. बड़ी बड़ी companies में, MNCs में most probably it is used. It's a group of star and bus. इस डायग्राम को देखो ध्यान से. Here is a bus technology. जब हमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, then this type of technology is used. Here a single bus, बीच में बस है, a backbone is there, and from those bus एक नोड निकली, उस वहाँ स्टार टोपोलॉजी बन गई. दिख रहा है, बस और स्टार का कॉम्बिनेशन. दिस इज ट्री टोपोलॉजी. ओके. इन ट्री नेटवर्क अ केबल फेलियर इज वन ऑफ द स्टार नेटवर्क आइसोलेट्स ओनली दैट. सपोज यहाँ पर ये केबल खराब हो गई, ये वाली, तो सिर्फ ये वाला नेटवर्क खराब होगा, रेस्ट अदर नेटवर्क्स विल वर्क वेरी फाइन. एक सिस्टम अगर खराब हुआ तो ये भी ओके चलेगा, बिल्कुल परफेक्टली fine. Problem कब है? When this backbone goes out of order, then whole system will be disturbed. Expansion is very, suppose मुझे 10 सिस्टम और कनेक्ट करने हैं इस वाली नेटवर्क टोपोलॉजी में, तो यहाँ से एक नोड निकालेंगे और एक स्टार यहाँ बन जाएगा. इजीली 4 to 5 10 जितने सिस्टम्स हैं, we can easily connect to the tree topology. Clear? Next is hybrid. Hybrid एक बहुत कॉमन सा वर्ड है आजकल साइंस में. Hybrid topology is a connection of two or more topology. Here you can see, in hybrid we can see bus, we can see star, we can see ring, every topology is available here. So mixture of each and every topology creates a hybrid topology. In hybrid topology a number of nodes can be connected. Since the existing networks can be combined together by adding the necessary hardware, so it makes hybrid technology easy to implement and maintain. It's the easiest one अगर हमें बहुत सारी nodes connect करनी है. Clear? Obviously expensive तो होगी, but when number of nodes are more, then we have to or we should follow this. Now, a term come internet. हम सबको पता है क्या है इंटरनेट.
अभी हमने नेटवर्क वर्ड पढ़ा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे घर में 10 सिस्टम है, आई कनेक्टेड ऑल दोज 10, देन इट्स अ नेटवर्क ऑफ माई होम. फाइन. इन द सेम वे मेरे जो एरिया है नेबरहुड में, ऑल द होम्स हैव क्रिएटेड देयर ओन नेटवर्क, then I connected those networks, then it become a network of my area. Fine. In the same way, a network of Samalkha, a network of another area, network of another area, all those networks are interconnected, then that becomes a network of Panipat. In same way, network of Panipat, Karnal, Yamunanagar, all those districts, they are connected, that becomes a network of Haryana. In same way, network of Haryana, Delhi, UP, MP, all those are connected, that becomes a network of India. Then network of India, Africa, America, Australia, all those are connected, that becomes a network of world, and that is internet. Means internet कुछ नहीं है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. मीन्स मेरे घर के एक छोटे से नेटवर्क से शुरू हुआ और बड़ा होता गया, इंटरकनेक्टेड एंड फाइनली इट बिकम्स द इंटरनेट. ओके, दैट्स व्हाई इंटरनेट इज कॉल्ड, इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. छोटे छोटे नेटवर्क्स का एक बड़ा नेटवर्क है. गॉट इट. कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क इज गवर्न्ड बाय प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स मीन्स कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं इंटरनेट पे काम करने के. Got it? And few protocol TCP, IP, FTP जो हम जनरली पढ़ते हैं, they are there. Next is accessing the internet. अब इंटरनेट मुझे अपने घर में कनेक्ट करना है सपोज, then what I will be requiring. सबसे पहले a system must be there, means या तो कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप, एनीथिंग जिसमें इंटरनेट चलाना है, that should be there. Then comes modem. मॉडम क्या है? इट्स अ डिवाइस, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. ओके, सपोज मैं आपको एक एसएमएस भेज रही हूँ, मैंने एसएमएस रिटर्न फॉर्म में भेजा है, तो क्या वो एसएमएस नेटवर्क के थ्रू उस रिटर्न फॉर्म में ही जाता है? क्या तारों में ये हमारा रिटर्न मैसेज ट्रेवल कर लेता है? नो, दैट इन द केबल्स द एसएमएस विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल. ओके, लेकिन मैंने लिखा तो डिजिटल फॉर्म में है. तो दिस इज मॉडम. मॉडम क्या करता है? इट, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो चीज़ें हैं. मॉड्यूलेटर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स आर डिजिटल मैसेज टू एनालॉग सिग्नल. एनालॉग सिग्नल कौन से सिग्नल? विच ट्रेवल इन द केबल्स. ओके, मीन्स मॉड्यूलेटर ने क्या किया? मेरे डिजिटल मैसेज को एनालॉग में कन्वर्ट किया, एनालॉग में ट्रेवल होके वो आप तक पहुँचे. अब आपके सिस्टम पे जाके डीमॉड्यूलेटर काम कर रहा है. वो क्या करेगा? अगेन दैट एनालॉग इज कन्वर्टेड टू अगेन डिजिटल. डिजिटल होगा तभी तो आपके मोबाइल पे आपको रीडेबल होगा ना. तो दिस इज द डिवाइस मॉडम विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल. दोनों काम करता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. ये जब आप घर में वाईफाई कोई डिवाइस लगवाते हैं, एट दैट टाइम डिवाइस के साथ मॉडम आता है, और हमारे मोबाइल्स में तो इनबिल्ट होता है अगर आप मोबाइल की बात करें तो. ओके, देन एन अकाउंट विद एन ISP. अगर आपको मोबाइल में नेट चलाना है तो आपका एक नंबर, मोबाइल नंबर होता है जिसके थ्रू आप रिचार्ज करवाते हैं, है ना. आइडिया इज एन ISP, योर जियो ISP, एयरटेल ISP मीन्स द कंपनीज फ्रॉम वेयर यू आर अवेलिंग इंटरनेट, दैट इज एन ISP. तो हमारे ISP के पास हमारा एक अकाउंट, हमारा अकाउंट कैसे होता है? हमारे मोबाइल नंबर के थ्रू होता है. ओके, तो मीन्स वी नीड एन ISP फॉर गेटिंग एन इंटरनेट कनेक्शन. एंड द लास्ट वन, मेरे पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, अब मोबाइल नंबर इज देयर, मैंने रिचार्ज भी करवा लिया. फिर अब मुझे लास्ट स्टेप क्या चाहिए? अ ब्राउज़र. ब्राउज़र इट्स अ सॉफ्टवेयर विच अलाउज अस टू वर्क ऑन इंटरनेट. ब्राउज़र लैपटॉप में भी चाहिए, जिसको आप गूगल क्रोम खोलते हैं, नेट पे कभी भी कुछ सर्च करना हो गूगल क्रोम खोलते हैं, है ना. तो दैट इज अ ब्राउज़र. द ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू एक्सेस द इंटरनेट. ब्राउज़र गूगल, कुछ ओपेरा, कुछ मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, मैनी यूजर्स यूज दिस. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. अब इंटरनेट कनेक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. लेट्स डिस्कस फ्यू. फर्स्ट इज डायल अप कनेक्शन. बहुत टाइम पहले ना हमारे घरों में एक लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करते थे.
and through those landline connections cables we used to connect with the internet and at one time या तो इंटरनेट पे काम होगा या टेलीफोन पे हम बात कर सकते हैं एक बार में एक चीज़. If we are talking on phone then we cannot work on internet. That was dial up connection. Okay, एक बार में एक काम या तो हम फोन पे कॉल कर सकते हैं और we can work on internet. Then comes DSL, digital subscriber line. It's a type of connection that uses telephone line. This connection is also connected through the telephone line, but it is far much better than the previous one. It was having higher speed, and here we were able to do both work at a single time. Means side by side we can do a call on telephone and on the other side we can work on internet also. Fine. Then comes cable internet. ये इनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे हिरार्की में ही लगाए हुए हैं मैंने. इसके बाद आया केबल इंटरनेट. इन केबल इंटरनेट जैसे केबल टीवी की लाइंस हमारे यहाँ वायर के थ्रू केबल टीवी का कनेक्शन आता है, इन द सेम वे आजकल बहुत सारी कंपनियां अभी भी चल रहा है ये. इन केबल कनेक्शन इज प्रोवाइडेड. हमारी छतों पे कोई एक सिग्नल डिवाइस लगा दी जाती है, वो राउटर का एक फॉर्म है फॉर द फास्ट एक्सेस ऑफ इंटरनेट इवन हायर देन DSL. यहाँ पर स्पीड इससे भी फास्ट होती है. DSL एंड केबल systems are known as broad. जिसको आप कहते हैं ना घर में ब्रॉडबैंड लगाया है हमने, that is cable network. Okay, here it allows us to use the phone call and connect to internet also. दोनों काम होते हैं. जनरली ब्रॉडबैंड में हमें फुल स्पीड इंटरनेट मिलता है without any disturbance. Then comes satellite connection. It helps in providing the internet access almost anywhere. Satellite connection means अब हमारे फ़ोन में सपोज रिचार्ज होता है, हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, दैट इज़ वर्किंग ना. हाउ? ड्यू टू द सैटेलाइट. नेट इज़ वर्किंग ड्यू टू द सैटेलाइट कनेक्शंस. मीन्स एनीवेयर एनी टाइम द स्पीड द सेम अमाउंट ऑफ डाटा इंटरनेट कनेक्शन कैन बी अवेल्ड. समझ रहे हैं? तो सैटेलाइट्स के थ्रू हमें वेव्स मिलती हैं, सिग्नल्स मिलते हैं. दैट्स हाउ हमारे सिस्टम में हमने हरियाणा का रिचार्ज करवाया एंड वी हैव गॉन इन साउथ and there also the net is working. How? That is due to the satellite connections. Then comes 3G और 4G system. हमारे मोबाइल्स में है ना, कोई 4G, पहले 2G होता था, फिर 3G आया, now it's time for 4G और आगे फ्यूचर में 5G भी रास्ते में खड़ा है. To use the internet on mobiles nowadays 3G and 4G standards are used. These standards allow more higher data speed. पहले से और तेज स्पीड होती जा रही है, आप देख रहे हैं. Then comes Wi-Fi. Wi-Fi की फुल फॉर्म याद रखना, वायरलेस फिडेलिटी. इट्स पॉपुलर टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत फेमस चीज़ हो गई है. Wi-Fi भी इट्स जनरली इन मोबाइल डिवाइसेस. थ्रू मोबाइल डिवाइसेस वी कैन एक्सचेंज द इंटरनेट. सपोज मेरे मोबाइल का नेट ख़त्म हो जाए तो आई कैन अवेल द नेट ऑफ योर. अगर आप मुझे हॉटस्पॉट दें एंड थ्रू Wi-Fi आई कैन कैच योर नेट. तो वाईफाई का एक बहुत अच्छा यूज़ है. वेर एवर वी कांट अवेल इंटरनेट थ्रू द वायर्स देन वाईफाई इज़ द बेस्ट ऑप्शन. थ्रू सिग्नल्स वी कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट. नेक्स्ट इज WiMAX, वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बेटा ध्यान से. WiMAX की फुल फॉर्म आ जाती है इट्स वर्ल्ड वाइड इंटरपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. इट्स अ टाइप ऑफ अगेन वाईफाई जैसा ही सिस्टम है. विदाउट केबल इट अलाउज अस एंड इट इज़ अवेलेबल अप टू डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 फीट. मीन्स ये वाईफाई से कम रेंज है, राउटर से सिर्फ 100 फीट की 100 फीट्स की रेंज में WiMAX वर्क्स. देन कम्स वाईफाई हॉटस्पॉट. एक जनरल सा वर्ड है जो हम हमारे घरों में भी यूज़ करते हैं. मीन्स इट्स अ हॉटस्पॉट इज़ अ फिजिकल लोकेशन फ्रॉम वेयर वाईफाई एक्सेस टू इंटरनेट इज़ अवेलेबल. अ हॉटस्पॉट दो तरह का हो सकता है, पब्लिक और प्राइवेट. पहले पब्लिक हॉटस्पॉट की बात करते हैं. आजकल गवर्नमेंट ने रेलवे स्टेशंस पे, बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस पे पब्लिक के लिए हॉटस्पॉट दे रखा है ना. तो दैट इज़ मीन्स अगर हम रेलवे स्टेशन पे हैं तो एटलीस्ट फॉर 30 to 35 मिनट्स वी कैन यूज़ फ्री इंटरनेट.
दैट इज पब्लिक हॉटस्पॉट. प्राइवेट हॉटस्पॉट कौन सा है? सपोज मैं अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करूँ एंड यू आर अवेलिंग दैट थ्रू योर वाईफाई कनेक्शन. ओके, मीन्स 1-to-1 मैं मेरा पर्सनल इंटरनेट आई एम विलिंगली प्रोवाइडिंग टू समवन. दैट इज पर्सनल और प्राइवेट हॉटस्पॉट. क्लियर? That's it for now. Go through the video thoroughly and please feel free to ask anything.